Good morning, students. Welcome to our KVB Learning. I hope you all are fit and fine. Till now, if we talk about the subject, we have completed with our three chapters, that is, History chapter number 1, 2, and 3. In today's lecture, we will start with our first chapter of Geography, that is, chapter number 8, Natural Resources. I want all of you to open your textbook. Now, natural resources. What is natural resources? For, to understand natural resources, first we need to know what is resources, right? So, resources are the things on which man is dependent, which can satisfy human needs, and if the man has physical and intellectual capacity to utilize them, they are called natural resources. What are natural resources? Those resources through which our human needs can be satisfied. Now natural resources यानी कि जो हमारे पास naturally available है, right? हमारी human needs को पूरी करने के लिए जो भी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं उसमें से अगर वो naturally available है अगर तो that is natural resources. So let's begin with the chapter. Human needs can be satisfied partially or completely through resources. These are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे पास बहुत सारे resources available है, right? जिसको हम हमारे needs complete करने के लिए और satisfy करने के लिए use करते हैं. But क्या उनमें से सारे elements natural है? These elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. Obviously, अगर हम rock ले तो हम rock को directly use करेंगे नहीं. जब तक उसमें human efforts ना लगा हो, जब तक human उसको अपनी need के accordingly change ना करे, अपने need के accordingly use ना करे, तब तक जब तक useful ना हो वो resource कहलाएगा नहीं. Understood? Let's continue. In this way, anything which is used to fulfill the human need becomes a resource. तो इस तरीके से अगर कोई भी human need को fulfill करती हुई कोई element है तो हम उसे कहते हैं resource. In ancient times, men did not know about the minerals buried within the land. So these were not resources at that time. But today these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining. अब अगर हम बात करें तो एंशियंट पीरियड की अगर हम बात करें, हमने एंशियंट टाइम के बारे में अब तक बहुत सारी चीज़ें देखी है. तो अगर एंशियंट पीरियड के बारे में बात करें तब उन्हें नहीं पता था कि हमारे पास अर्थ के नीचे भी कोई यूटिलाइज करने लायक रिसोर्सेज है जिसको हम हमारी नीड्स के लिए यूज़ कर सकते. तो क्या तब वो रिसोर्सेज कहलाते? नहीं, because at that time it was not at all useful for human. But if we talk about the present day, each and every element found around our earth or our environment, we utilize them as per our need. So all those elements are becoming a resource for us. है ना? Let's continue. The natural resources should have both the virtues of utility and capability to work. Obviously, natural resource में वो दो elements होने चाहिए, virtue of utility and capability to work. यानी कि उसे यूज़ करने लायक होना चाहिए और दूसरा कि वो कैपेबल होना चाहिए ताकि वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके. द रिसोर्सेज आर मेड अप ऑफ द इंटरैक्शंस ऑफ द थ्री, दैट इज नेचर, मैन एंड कल्चर. अगर नेचर नेचुरली अवेलेबल है, मैन के थ्रू यूटिलाइज, मैन अगर उसे अपनी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है और अपने कल्चर के लिए अगर वो यूज़फुल है तो ही वो रिसोर्स कहलाएगा. तो अगर आप लोग सोच रहे होगे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का करेंगे क्या, सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. इफ वी टॉक अबाउट रिसोर्सेज के यूजेस, हमें किस तरीके से ये यूजफुल है तो बहुत तरीक़ों से है. वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. अगर हम बात करें, अगर सुबह से हमारी लाइफ जब से स्टार्ट हो रही है और रात को सो रहे तब तक हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ करे बिना अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे नहीं. तो वो कैसे? लेट अस नो अबाउट इट इन डिटेल. देखो, रिसोर्स एज अ फूड,
ऑब्वियसली हमारे पास ग्रेन है, बट क्या हम ग्रेन को यूं ही खा रहे हैं कच्चा? नहीं, उसका फ्लोर कर रहे हैं, फ्लोर को रोटी बना रहे हैं, रोटी को खा रहे हैं. Various food requirement of man are compiled by various resources. Fruits are grown naturally. Various crops obtained through agriculture, milk and its product, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs. Honey prepared by honeybees, etc. used as food items. See, ये सारी चीज़ हमारे पास naturally available है, but as a human जब तक हम उसे यूटिलाइज ना करें हमारे लिए, तब तक ये हमारे लिए रिसोर्स कहलाएगा नहीं. सो रिसोर्स का फर्स्ट यूज हमने कहाँ किया? एज अ फूड. दूसरा हम देखते हैं रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि देखो कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते यूज करने के लिए, लेकिन वो हमारे लिए एक रॉ मटेरियल का काम कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट अ ट्री, तो ट्री को हम डायरेक्टली अगर यूज करना चाहे तो उसमें से हम फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट करके खा सकते हैं. लेकिन अगर हमें उसका फर्नीचर बनाना है तो हमारे पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम वो वुड को कट करें, उसको ऐसे प्रोसेस में डालें ताकि वो हमें एक फर्नीचर का फॉर्म लेके यूजफुल हो सके. तो यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारे लिए क्या बन रहा है? रॉ मटेरियल. ठीक है. वेरियस गुड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वुल, hides and meat available from animals, mineral ores, etc. from the raw material for many industries. यानी कि अब जो इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज में से, राइट? नाउ थर्ड इज रिसोर्सेज एज एनर्जी. ऑल ऑफ अस नो दैट वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट डू वी नो वेयर डज दिस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम? So we use coal, petroleum, natural gas, etc. as a fuel in industries as well as domestic fuel. Besides, energy can be generated through solar insolation, wind, sea waves, tides, ebbs and waterfall, etc. हमें ये सब के बारे में पता है. But जब तक हम उसे एनर्जी के लिए यूज़, हमें सबको पता है कि सूरज की किरणें आ रही, बट हमने जब तक सोलर एनर्जी को डेवलप नहीं किया तब तक हम उसे यूज़ कर पाए नहीं. सो रिसोर्सेज के 3 फॉर्म्स है. वन, जिसको हम डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं एज अ फूड. दूसरा, एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. एंड थर्ड, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिसोर्सेज आर ऑफ 3 types. Let's consider and classify resources into various parts on the basis of ownership. First है on the basis of ओनरशिप. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी, यानी कि कोई ओनरशिप यानी कि वो कहाँ पे बिलोंग करता है और किसने ओन किया हुआ है. सपोज इफ आई टॉक अबाउट माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट विल बी माइन, आई एम द ओनर, राइट? सो फर्स्ट रिसोर्सेज आर डेवलप्ड एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. सेकेंड इज रीअवेबिलिटी, कि क्या वो हमारे पास वापस से अवेलेबल हो पाएगा. थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, यानी कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है. ठीक है. Following are the types of resources on the basis of ownership. Let us understand this through the table. See, one small table is given where ownership is given, its detail is given, and few examples are given. If we talk about individual resources, then who is the owner of that individual resources? Owned by an individual or a family. मेरा या मेरी फैमिली की अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, राइट? सो दैट इज माई ओन इंडिविजुअल रिसोर्स. इफ आई टॉक अबाउट नेशनल रिसोर्स, यानी कि देश की ओन की हुई अगर कोई चीज़ें हैं, जैसे कि कंट्री की जिस पर राइट्स हो, तो है हम कह सकते हैं आर्मी है, इंटरनेशनल ट्रेड है, तो इस पर किसका हक है? हु इज द ओनर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और आर्मी इन आवर कंट्री? ऑब्वियसली आवर ओन कंट्री. सो दैट विल बिकम अ national resource. But now if we talk about global resource, so all the physical or non-physical resources which are used for human welfare are global resource. जैसे कि resource of common ownership of all the nations of the world, right? Now first हमने ये जो देखा was classified, resources was classified on the basis of ownership. Now next we will learn on the resources classified on the basis of their distribution.
नाउ फर्स्ट कॉलम यू कैन सी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, डिटेल एंड एग्जाम्पल. तो अगर वो यूनिवर्सल रिसोर्स कब है, जब वो यूजफुल गैसेस इन द एटमोसफियर, एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो ऑब्वियसली क्या इंडिया में अवेलेबल ऑक्सीजन का सिर्फ इंडियंस पे हक है? नहीं. तो दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्स बिकॉज इट इज नेचुरली अवेलेबल एवरीवेयर. जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, वाटर, pasture land. Suppose if I talk about a land where I get lot, if I mine that land and I get coal, so that intellectual property depends on the area of that particular, it belongs to only that particular area or the owner who has owned that particular लैंड. सो दैट बिकम्स जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज. यानी कि अगर इंडिया की लैंड में कहाँ कहाँ पे हमारे पास जनरली कोल अवेलेबल है की बात करें, तो दैट इज जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज. रेयर रिसोर्सेज यानी कि वो प्लेस पे वो बहुत ही रेयर अवेलेबल है. दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस यानी कि बहुत कम जगह पे अवेलेबल हो, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, कॉपर है, गोल्ड है, यूरेनियम है. तो ये हर जगह आपको अवेलेबल रहेगा नहीं. थर्ड इज सॉलिडरी रिसोर्सेज यानी कि मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेस इन द वर्ल्ड. ठीक है. Cryolite is an example of a solitary resources that is only available in Greenland. So this is classification of resources on the basis of distribution. You can understand detail of two types. Resources can be classified by other methods also. अभी तक हमने सिर्फ दो देखी. कौन सी देखी? कौन से दो बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, सॉरी क्लासिफिकेशन देखा? बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेसिस ऑफ ownership, right? So resources can be classified in other way also, wherein these can be classified into types as renewable and non renewable. जैसे कि हमने यहाँ देखा था on the basis of reavailability यानी कि वो renewable है या नहीं है. तो अगर हम ऐसी बात करें तो रिसोर्सेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सम रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स एज पर देयर यूसेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. इन अदर वर्ड्स दिस आर इनएग्जॉस्टेबल. ये अपने अपने आप में ही बार बार रीडेवलप होता है. कितना भी यूज करो इट डज नॉट गेट एंड अप. फॉर एग्जाम्पल सोलर इंसोलेशन, विंड, birds, animals, bioresources, etc. fall under this category. अगर हम बात करें renewable resources की, तो ये ऐसे resources जो खुद रीजनरेट होते हैं और कितने भी प्रोपोर्शन में अगर हम इसको यूज़ करें ये अनलिमिटेडली अवेलेबल है, ये कभी भी ख़त्म होते नहीं हैं. The other part is non-renewable resources. Non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. अगर हम एक बार उसे एक्सट्रीमली यूज़ कर रहे हैं तो ये बार बार रीजनरेट होगा नहीं. हमारे पास रीजनरेट अगर हो भी रहा है तो उसे रीजनरेट होने के लिए सालों लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है. ठीक है. प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑब्वियसली रिसोर्स बहुत रेयरली अवेलेबल है, रिसोर्सेज बहुत प्रीशियस है, तो उसका यूज़ करना एक सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ होना चाहिए. और इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज. ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमारी नीड्स कभी भी पूरी नहीं होगी, पर जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो हमेशा लिमिटेड होते हैं. ड्यूरिंग लास्ट 100 years, usage of these resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion. दिन पे दिन बढ़ती जनसंख्या और साइंस के डेवलपमेंट की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है. तो पिछले अगर 100 years की बात करें तो हमारे जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो इतना ही बढ़ गया है. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें यूज़ करके ख़त्म करके चले जाना है, हमारे बच्चों के लिए और उनके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसे सेव करके रखना है. रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज रैशनली यानी बहुत दिमाग से सोच समझ के यूज़ करना चाहिए.
द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्व, हम कौन सी चीज़ को कंजर्व करते हैं? हम क्या सनलाइट को कंजर्व करके रख रहे हैं? विंड को कंजर्व करके रख रहे हैं? नहीं. बट कंजर्व हम वही रिसोर्स को कर रहे हैं जिसकी कमी हो दिख रही हो हमें, जिसकी हमारे पास स्कैरसिटी हो. स्कैरसिटी यानी कि कमी. If the resources are exploited at the current rate, where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain development and the current lifestyle. तो यही अगर डेवलपमेंट को आगे प्रोग्रेस दिखाना है, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, तो हमें हमारे रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के यूज़ करने पड़ेंगे. ठीक है. सो it includes things like a rational usage, its conservation and reusage. Some things can be reused also. तो हमें वो भी यूज़ करना चाहिए. बचपन में हमने 3R के बारे में पढ़ा था. रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज. तो हमें वो भी करना चाहिए. When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called conservation. Conservation क्या होता है? तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना, एक रैशनल वे में रिसोर्स को यूटिलाइज करना, एक प्लान्ड वे में रिसोर्स को यूज़ करना, जिसकी वजह से इसके बेनिफिट हम लॉन्गर पीरियड तक इंजॉय कर सके. ठीक है. तो इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, gather information about the availability of utilized, unutilized and probable resources of any region or a country as a unit. अब कैसे आप इसके बारे में प्लानिंग कर सकते हो? तो पहली चीज़, आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर डेटा कलेक्टेड होना चाहिए, जिसमें आपके बारे में 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो. एक तो हमारे पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है, उसमें से हमने कितना यूटिलाइज किया है और कितना अनयूटिलाइज्ड है. ठीक है. बाद में हम करेंगे. द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज्ड ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी. अब वो रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में और जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसको हम बार बार नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू नहीं हो सकता, वैसी चीज़ों को हम बहुत सोच समझ के यूज़ करेंगे. Attempt should be made to develop those resources, the quantity of which can be increased. अब ऐसे रिसोर्स की यूज़ करना चाहिए कि जिसके थ्रू उसकी रिसोर्स की क्वांटिटी भी बढ़ सके. रिसोर्स विच आर चीपर एंड आर इजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्ट. हमारे पास जो सस्ते में मिल रहा है और ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको वेस्ट करना स्टार्ट करें, बट उसे बहुत अच्छे से यूज़ करना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन या हम खुद भी फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकें. देन दोज रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व. जो बहुत कम क्वांटिटी में है उसे भी कंजर्व करके रखना चाहिए. फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज़ फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म. हो सकता है हम उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ सके, राइट. तो वो अल्टरनेट ऑप्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे डेवलपमेंट की प्रोसेस में एक लॉन्ग टर्म, कहते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखेगा. हम उसे बार बार थोड़े टाइम बाद भी यूज़ कर पाएंगे. नेसेसरी लॉ शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली. ये गवर्नमेंट का रोल है कि नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, उसको इतना ओवर यूज़ करने पे एक लॉ होना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट लॉ फ्रेम किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से पब्लिक उसे ओवर यूज ना करे. Citizens should be well acquainted with all facts associated with rational usage of resources and a public awareness should be cultivated. What should be done? That citizens को ये फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे रिसोर्स को हम रैशनली यूज़ करें. एक पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए ताकि पब्लिक को ये पता चले कि हमारे रिसोर्स को कितना सोच समझ के रैशनली यूज़ करना है. Now, here we are going to learn about soil formation. Why do you think soil is a resource for us? अगर सॉइल कोई रिसोर्स होगी तभी हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, राइट. सॉइल कैन बी रिसोर्स बिकॉज इट इज़ द सॉइल. पहले तो ये समझे हम कि सॉइल क्या है.
तो इट इज अ थिन लेयर ऑफ द सरफेस of the earth which is composed of many minute particles wherein the elements like minerals, humidity, air are mixed. ओके, सॉइल क्या है? जहाँ पे एक थिनेस्ट लेयर है अर्थ की सरफेस का, जहाँ पे मिनरल्स, ह्यूमिडिटी वगैरह अवेलेबल है, और वो हमारे लिए किस चीज़ की यूज़ आ रही है? क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, फॉरेस्ट को, वेजिटेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वेजिटेशंस ग्रो हो रहे हैं तो वो हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वी विल लर्न कि हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। जनरली द पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रोज इज नोन एज सॉइल। वो वेजिटेशन यानी कि जहाँ पे प्लांट्स, क्रीपर्स, शर्ब, क्लाइंबर्स, फॉरेस्ट वगैरह जो ग्रो किया जाता है, वो पार्ट को, वो अर्थ के सरफेस को हम सॉइल कहते हैं। The soil is a thin layer composed of various elements of the surface of the earth. Minerals, humidity, humus, and air are mixed up in it. The parental rock lie below the soil. Soil is formed due to the material available through the denudation. यानी कि क्या कहा गया है? डिन्यूडेशन की वजह से हमारे पास सॉइल फॉर्म्ड है। पहले अगर हम देखें तो हमारे पास सॉइल नहीं थे। बड़ी बड़ी जो रॉक्स थी, माउंटेन्स थी, उसमें एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से, बाकी डिजास्टर्स की वजह से छोटे छोटे रॉक्स कटे हुए, उसमें से और छोटे कट्स हुए, उसमें से और छोटे, तो उसमें से सबसे जो पाउडरी फॉर्म है वो है सॉइल। मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्स्ड इन इट। सॉइल में कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल है? तो मिनरल्स है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमस है और एयर है। द पेरेंटल रॉक लाई बिलो द सॉइल। पेरेंटल रॉक्स कहाँ पे है? सॉइल के नीचे। सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डिन्यूडेशन, बायोटिक रिमेनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर आर गेट मिक्स्ड अप विद इट. In other words, the soil is a natural mixture of minerals and biotic elements which have the capacity to grow and develop vegetation. क्या हो रहा है? सॉइल में एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो एक बायोटिक एक ऐसा मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स है जिसकी वजह से उसमें कोई चीज़ें ग्रो। आपने पत्थर में कभी कोई प्लांट को ग्रो होते हुए देखा है? नहीं, बट सॉइल के पास वो कैपेसिटी है कि वो वेजिटेशन को ग्रो कर सके, राइट? Soil is the uppermost layer of the crust. क्या है वो? uppermost layer of the crust, जहाँ पे वेजिटेशन को ग्रो करने की कैपेसिटी है. Although their proportion is not the same everywhere, the soil is the layer of surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rock and vegetation. Soil किस चीज़ से बना है? तो पहले तो ये पता आपको कंफर्म करना है कि सॉइल हर जगह पे सेम क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, और वो पेरेंटल रॉक का ही एक हिस्सा है जहाँ पे वेजिटेशन के कुछ पार्ट्स, कुछ एनिमल के डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, कोई फाइन पार्टिकल्स मिलके एक सॉइल फॉर्म करता है. Humus is formed due to disintegration or decay of vegetation or insect is added to this. Humus कैसे बन रहा है? मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि ये plants and animals के dead and decaying matter, मतलब उसकी वजह से एक humus create होता है. This biotic element play an important role in the development of vegetation. तो इस वजह से क्या होता है? वेजिटेशन में एक सॉइल वेजिटेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज सो इम्पॉर्टेंट and widespread that the soil formed of different type of rocks in that region over a long time is the same. So the soil formed out of the same parental rock under different climatic influence is different. Now if we talk about soil, तो वो पेरेंटल रॉक की वजह से अलग अलग क्लाइमेट के थ्रू वो फॉर्म होके वो सॉइल बनी है, राइट? पत्थरों को जब टूट टूट के अलग अलग पार्ट में वो फॉर्म की गई है, फॉर्म हुई है, तो उसमें क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सॉइल्स हम तो उसे हथौड़ी से या मिक्सचर में डाल के पीसने तो नहीं गए थे, नहीं, राइट? तो वो क्लाइमेट ने अपना खुद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. सॉइल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस. ठीक है, तो ये अगर हम सॉइल के भी टाइप आगे देखेंगे तो वो डिपेंड करता है किस कलर, उसका डिफरेंस हम करते हैं कलर के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे,
पैरेंटल रॉक के बेसिस पे, स्ट्रक्चर और ह्यूमस के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ recently, Indian Council of Agriculture Research (ICAR) has divided soil into 8 parts, into 8 types. इंडिया में soil के कितने डिवीजन हैं? 8 types: alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil and forest soil and marshy petty soil. तो इन सब के बारे में हम देखेंगे. Of this, the mountain soil and forest soil are found at different altitude in mountainous regions. Now let's first talk about alluvial soil. Now alluvial soil की अगर हम बात करें तो it spreads over 43% of total area in India. कितने पार्ट में अवेलेबल है? 43% of the total area of India. This soil is found in the northern plain of Brahmaputra Valley. कहाँ मिलता है? Northern plain में ब्रह्मपुत्र की वैली के पास. In the east up to Satluj in the west. ब्रह्मपुत्र वैली से लेके सतलज रिवर तक वो अवेलेबल है. Also in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है? तो कहा गया है नॉर्दर्न प्लेन्स में ब्रह्मपुत्र वैली से लेके सतलज रिवर तक, फिर महानदी के डेल्टाज में गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स के पास. द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज ड्यू टू द एल्यूअल डिपोजिशन ऑफ बाय द रिवर्स. नाउ अब माउंटेन से जो रिवर्स पिघलती हुई नीचे आ रही है वो अपने साथ एक एल्यूवियल डिपॉजिट्स लेके आती है. ठीक है. सो द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल इज ड्यू टू द एल्यूवियल डिपोजिशंस बाय द रिवर. There is more proportion of potassium, phosphoric acid and limestone in the solid and there is less proportion of nitrogen and humus. अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें पोटेशियम, फॉस्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन वगैरह ज़्यादा है, whereas नाइट्रोजन और ह्यूमस कम है. If pulses are grown in this soil, if pulses are grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized. अगर इसमें हम pulses grow कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से grow किए जा सकते हैं. Crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, soilseeds, etc. can be grown in this soil. क्या क्या grow किया जा सकता है यहाँ पे? Wheat है, paddy है, paddy यानी कि rice, sugarcane, jute, cotton, maize यानी कि corn, oil seeds, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. देखो इन द मैप द येलो सेक्शन इज ऑफ एल्यूवियल सॉइल. मैप में आप जहाँ जहाँ भी येलो कलर देख रहे हो वहाँ पे इंडिया में एल्यूवियल सॉइल की डिपॉजिट्स मिलेगी. नाउ टॉकिंग अबाउट रेड सॉइल. रेड सॉइल ऑक्यूपाइज 19% ऑफ द लैंड. कितनी? एल्यूवियल कितनी थी? 43%. ये है सिर्फ 19%. इट स्प्रेड्स फ्रॉम तमिलनाडु इन द पेनिनसुलर इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन नॉर्थ. कहाँ से कहाँ तक है? तमिलनाडु से लेते हुए बुंदेलखंड. एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट अप टू कच्छ इन द वेस्ट. राजमहल हिल से लेके कच्छ तक. सच सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो. The soil is red in color due to presence of ferric oxide. Ferric oxide की वजह से ये रेड कलर है. इसका रेड कलर क्यों है अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या आंसर करोगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड. और ये येलो भी बनती है अगर हम धीरे धीरे नीचे से ढूंढे, एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन. लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल. लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट इसमें नहीं मिलता. There is a deficiency of lime, magnesium, phosphate, nitrogen and potash in this soil. So, क्योंकि ये सब चीज़ों की कमी की वजह से वहाँ हम कैसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? मिलेट है, कॉटन है, वीट्स है, ज्वार है, लिनसीड्स है, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन रेड सॉइल. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसका टेक्सचर कैसा है, वहाँ पे कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, किस टाइप की सॉइल्स में. Third is black soil. Now, black soil covers 15% of total area in India. कितना? सिर्फ और सिर्फ 15%.
द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा. डेक्कन लावा यानी कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है उसमें से जो लावा आता है उसकी स्प्रेडिंग की वजह से यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल है. such soil is found in entire Maharashtra, western Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and certain part of Karnataka. कहाँ कहाँ अवेलेबल है? महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश and certain parts of Karnataka. In Gujarat, Surat, Bharuch, Narmada, Vadodara, Tapi and Dann districts have this type of soil. Lava rocks and climate play an important role in the formation of such soil. Black soil क्यों फॉर्म हो रही है? Lava rocks और अपने climate की वजह से. There is a more proportion of iron, lime, calcium, potash, aluminium and magnesium carbonates. किस चीज़ का proportion ज़्यादा है? Iron, lime, calcium, potassium, aluminium, magnesium, carbonate. ठीक है. इट इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल. बहुत फर्टाइल सॉइल मानी गई है इसे. दिस सॉइल ऑल्सो हैज द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर. इसमें मॉइस्चर की कैपेसिटी भी ज़्यादा, अपने आप में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रख सकता है. वेन एवर द मॉइस्चर ड्राइज अप दे डेवलप फिशर्स यानी कि देखो जहाँ पे अगर मॉइस्चर यानी अगर पानी की कमी हो रही है तो देखो यहाँ पे ऐसे क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. क्रॉप्स लाइक कौन से क्रॉप्स यहाँ ग्रो किए जा सकते हैं? तो कहा गया है कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड अड़द. एज इट इज मोर सुटेबल टू कॉटन द सॉइल इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. कॉटन के लिए सबसे अच्छी सॉइल अगर कोई हो तो वो है ब्लैक सॉइल. इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? ब्लैक कॉटन सॉइल. अगर हम मैप की बात करें तो मैप में देखो जो ब्लैक पार्ट कवर्ड है दैट इज ब्लैक पार्ट ऑफ द इंडिया. जो जहाँ पे ब्लैक शेड दिख रहा है वहाँ पे हमारे पास ब्लैक सॉइल अवेलेबल है. जो पोर्शन रेड में अवेलेबल है वहाँ पे रेड से कलर किया हुआ है. देखा आपने? नाउ लेटरेट सॉइल. The name laterite is derived from the Latin word later, which means a brick. Its red color is due to iron oxide. अब लेटराइट सॉइल कैसी है? रेड है. तो वो क्यों रेड है? क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड अवेलेबल है. When this soil becomes wet, it becomes smooth like butter, and when it is dry, it becomes very hard. अगर ये एकदम अगर उसमें वाटर का प्रोपोर्शन होता है तो एकदम चिकनी हो जाती है बटर की तरह, और जैसे ही वो ड्राई होती है इट बिकम्स वेरी हार्ड. मतलब यानी कि ब्रिक की जो फॉर्मेशन है उस टाइप का कुछ दिख रहा है इसमें. It is formed due to the change of dry and moist climate and due to preservation of silica-based material. This soil has developed in the higher area of peninsular plateau of India. The soil contains more of iron, potash and aluminium. Laterite soil में क्या ज़्यादा available है? तो iron, potassium and aluminium. The soil is less fertile, but cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashews can be ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइजर्स. यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है. अगर फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कॉटन, पैडी, रागी, शुगरकेन, टी, कॉफ़ी, कैशू सब ग्रो कर सकते हो. नेक्स्ट कम्स लेटरेट सॉइल की. अगर हम बात करें पहले तो देखो लेटरेट सॉइल जो है वो ग्रीन पोर्शन में अवेलेबल है. बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पूरे इंडिया में अवेलेबल है. राइट. नाउ कम्स डेजर्ट सॉइल. नाउ डेजर्ट सॉइल नाम ही ये बताता है कि कौन से एरिया में अवेलेबल है? डेजर्ट के सेमी एरिड एरिया में, यानी कि जहाँ पे रेनफॉल की बहुत कमी है. ये सैंडी सॉइल है, एकदम बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं अवेलेबल है. इसमें डिजॉल्व मिनरल्स अवेलेबल है. Rajasthan, Haryana, Southern Punjab have this types of soil. In Gujarat, this type of soil is found in Kutch and some parts of Saurashtra. कहाँ कहाँ अवेलेबल है? तो कहा गया है राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब and in parts of Gujarat, Kutch and Saurashtra also has this kind of desert soil. With irrigation facilities, crops like millet and jowar can be cultivated. क्या हम ग्रो कर सकते हैं? अगर इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि अगर वाटर की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो तो हम जुआर और मिलेट यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं. माउंटेन सॉइल. नाउ माउंटेन सॉइल भी ये दिखा रहा है कि माउंटेनियस रीजन में अवेलेबल है. तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन वैली एंड स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालयस
एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2700 to 3000 मीटर्स, 27 से लेके 3000 मीटर्स तक ये अवेलेबल है। एक थिन लेयर है जो अंडर डेवलप्ड होता है। दिस लेयर इज वेरी थिन एंड इज अंडर डेवलप्ड। दिस सॉइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। कहाँ कहाँ अवेलेबल है? आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। कौन से टाइप की चीजें ग्रो होती है? तो पाइन एंड चिट ट्रीज। कैसी? कौन सी वो भी क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे स्नो का बड़ा दिखा है। तो वहाँ के जो क्रॉप्स है वो कैसे ग्रो होते हैं? हमने पिछले 9th स्टैंडर्ड में नेचुरल वेजिटेशन में देखा था कि माउंटेनियस रीजन में, माउंटेनियस फॉरेस्ट में क्या अवेलेबल होता है? पाइन एंड चिट ट्रीज, यानी कि जो कोनिकल शेप हो, जिसमें ऊपर से अगर कुछ भी गिरे तो वो इजीली फॉल होके नीचे आ सके। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। This type of soil is found within the altitude between 3000 to 300 meters in the coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and Terai regions of Himalayas. हिमालयाज के रीजन में अगर नीचे के पार्ट 3000 से लेके 301 मीटर तक, 3100 मीटर तक की जो पार्ट है कॉनिफॉरस फॉरेस्ट की, वहाँ पे ये अवेलेबल है। It changes into blue or red color while going down within the land. ये किससे बना है? पहले तो ये देखना हमें रह गया। The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in humus caused due to decaying leaves. अब decaying leaves यानी कि जो leaves नीचे गिर रहे हैं उसके जो सड़े हुए पार्ट्स है उसकी ऊपर जम जाने की वजह से ये ब्लैक कलर का बन जाता है। और धीरे धीरे इसका कलर लैंड की तरफ अगर हम देखें तो कैसा चेंज हो जाता है? ब्लू और रेड। टी, कॉफी एंड स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, बार्ले एंड पैडी आर ऑल्सो ग्रोन। दिस सॉइल इज फाउंडेड इन लिमिटेड एरिया। नेक्स्ट इज marshy or petty soil. This type of soil develops in humid regions of This type of soil develops in humid regions due to accumulation of biotic elements. क्यों है? इसमें biotic elements होने की वजह से ये एकदम humid है। During rainy season, this land is submerged under water and when the water recedes, paddy can be grown in. कहाँ पे? सिर्फ पैडी का मतलब जो रिवर, अगर मानसून सीजन है तो वाटर की अवेबिलिटी जहाँ पे है, अगर फिर एक बार वाटर वहाँ से चला गया तो उसका जो पार्ट रह जाता है, वाटर और जो लैंड का पार्ट है, वहाँ पे क्या ग्रो किया जा सकता है? पैडी। देयर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट एंड मिनरल इन सच सॉइल बट इट शोज इनसफिशियंसी इन फॉस्फेट एंड पोटैश। यहाँ पे बायोटिक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट और पोटेशियम की कमी है। ये ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु और सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार में अवेलेबल है। ऑल्सो इन अल्मोदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इसलिए आप देखोगे तो ये सारे एरिया में राइस एज अ फूड ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, राइट। द सॉइल इज वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। Now comes soil erosion. What is soil erosion? So, due to some disasters, if the upper portion of the land, that is soil, gets carried away, right? So, that is soil erosion. Now, if the upper layer gets carried away, the vegetation cannot be grown over there. To stop this soil erosion, हम क्या करते हैं? हम वहाँ पे कोई प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ताकि अगर हम वहाँ अगर प्लांट्स कर रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी टाइप की कोई वेजिटेशन ग्रो कर रहे हैं तो वो सॉइल को अपने रूट्स के साथ पकड़ के रख सकती है। इरोजन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर की वजह से जो लैंड पार्टिकल्स है, जो फाइनेस्ट लेयर है सॉइल की, वो अगर चली जाए तो हम उसे कहते हैं इरोजन। In other words, the faster transportation of particles of the surface land to other place by natural forces. It takes many years to form the upper layer. If the soil particles are carried away because of heavy rain or by stormy wind, the agricultural production decreases.
इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन इट्स अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर। मैंने बताया ना कि वहाँ पे अगर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करनी है, कोई वेजिटेशन ग्रो करना है, तो उसका अपर लेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द सॉइल इरोजन कैन शुड बी प्रिवेंटेड। कैसे हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल करवाना होगा हमें, यानी कि जो गाय भैंस बकरी को हम ग्रेस करने के लिए लैंड प्रोवाइड करें, तो ओवर ग्रेजिंग जब वो हो जा रहा है, जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं रह रहा, तो वो सॉइल इरोड हो जाएगी, तो वो कंट्रोल करना चाहिए। फिर दूसरा बताया है प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन द काउंटर बेटर देन स्लोपी रीजन्स। अब जहाँ पे स्लोप है वहाँ पे ज़्यादा ये दिक्कत होती है, तो वहाँ पे ट्रीज को ग्रो करना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए। प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड, जो बंजर जमीन पड़ी है, जो ऐसी खाली ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पे भी अगर आप प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे तो सॉइल इरोजन रुक जाएगा। कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देर आर स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स के आसपास चेक डैम्स करो ताकि वो स्ट्रीम का वाटर ओवरफ्लो होके लैंड में ना घुस जाए, क्योंकि जैसे ही वो लैंड में घुस जाएगा, अगर वो वापस पानी चला जाएगा तो अपने साथ सारी अपर लेयर सॉइल की लेके चला जाएगा। सो चेक डैम्स होना चाहिए। कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड, कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस स्पीड ऑफ वाटर। कल्टीवेशन होना चाहिए ताकि वो वाटर की स्पीड को रोक सके, वो अपने साथ सॉइल को भी साथ में खींच के ना चला जाए। नाउ देयर कम्स सॉइल कंजर्वेशन। क्या है? सॉइल कंजर्वेशन। नाउ सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन द क्वालिटी। क्या है? इरोजन को कंट्रोल करना है और उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है। सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स इन द ओरिजिनल प्लेस। सो different remedies are used at different places in the world according to its location and problem of the soil is conserved। तो उसकी प्रॉब्लम उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली उसे कंजर्व किया जाता है। सपोज देखो, अगर वो सरफेस रन ऑफ वाटर फ्लोज फास्टर ओवर द स्लोप्स, अगर वो स्लोप्स की बात करें जैसे कि माउंटेन रीजन है, तो वहाँ पे वाटर फ्लो कितना होता है? बहुत स्पीड में होता है। तो वहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर सकते? हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं ताकि वहाँ पे एक जो डायरेक्ट सर स्लोप है उसे हम कंट्रोल कर सकें, राइट। वहाँ पे अगर प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे तो भी उसकी स्पीड कम रहेगी। दूसरा है वाटर हार्वेस्टिंग इन टेरेस्ड स्लोप। मोस्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड देयर इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर। अब टेरेस, मैंने जैसे कहा टेरेस फार्मिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम वाटर सोर्स की वाटर को रिजर्व करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। Now, water having faster flow percolates less in soil। जिसका फ्लो एकदम स्टीपर है तो वहाँ पे वो सॉइल को ज़्यादातर ले जा पाता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वाटर accumulated on the terrace percolates slowly and raises the ground water level। तो अगर हम वहाँ पे ऐसी टेरेस फार्मिंग टाइप का कोई डाल दे तो जिसके अंदर से वाटर अंदर ड्रिप होता जाए, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ जाए। सो इफ द सॉइल इज नॉट कंजर्व देन देर आर चांसेस ऑफ फ्लड वेयर द रिस्क ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी गेट्स अराइज्ड। क्या अराइज होता है? लाइफ एंड प्रॉपर्टी की डेथ का और लॉस का हम रिस्क ले रहे हैं अगर फ्लो ज़्यादा आ गए। Thus, soil conservation is very important. Remedies of soil conservation, हम कैसे कैसे कर सकते हैं सॉइल को कंजर्व? The roots of the trees in the forest holds up the soil particle। जैसे मैंने कहा ना कि जो ट्रीज थे उसके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को कैच करके होल्ड करके रखते हैं। तो प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांट ट्रीज इन द रिवर गोर्स ऑन द माउंटेन एंड ऑन माउंटेन स्लोप। और रिवर के आसपास और माउंटेन रीजन पे भी हमें प्लांटेशन करना चाहिए। सीरीज ऑफ ट्री शुड बी ग्रोन नियर डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड विथ मोर वेलोसिटी। इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट। डेजर्ट को और दूसरे डेजर्ट में कन्वर्ट होने से क्या रोक सकता है?
प्लांट्स, अगर वहां पे एक सीरी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर दिए गए तो विंड का जो प्रोपोर्शन है वो बार बार उसे विंड को स्पीड में ब्लो होने देगा नहीं. The river floods should be controlled by diverting their other river flow in the other rivers or in dry river beds. Now, रिवर के फ्लो को चेंज कर देना चाहिए या उसका रिवर बेड चेंज कर देना चाहिए. द अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्चरिंग loosens the soil layer on the mountain. It should be prevented. The unrestricted pasturing loosens the soil layer on the mountains. It should be prevented. So, जो हम पेस्चराइजिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम पेस्चर डाल रहे हैं तो माउंटेन लेयर पे जो सॉइल है वो भी प्रिवेंट की जा सकती है, राइट. Methods like horizontal cultivation, terrace farms, etc. should be implemented. अगर स्लोपी एरिया है तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग करो. टेरेस फार्मिंग यानी टेरेस जैसा उसे कार्व करके बनाओ ताकि वहाँ पे डायरेक्ट स्लोप हो सके नहीं. दूसरा है हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन. सी ओवर हियर, अगर हम स्लीपिंग में कर रहे हैं तो उसे हम स्टैंडिंग में करना स्टार्ट करें, कल्टीवेट. ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड इन द सॉइल विच हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी. अब जहाँ पे फर्टिलिटी नहीं है, जैसे ये माउंटेन रीजन में हमने बताया, तो वहाँ पे पेस्चरिंग होना चाहिए, राइट. पेस्चरिंग यानी कि ताकि वो सॉइल की जो फर्टिलिटी लूज हो गई वो उसे रीगेन कर सके. सो बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडी सॉइल्स कैन बी कंजर्व्ड. द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी टुडे. आज की जनरेशन में, आज की वर्ल्ड में सॉइल का कंजर्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड पीपल शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स कंजर्वेशन. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड विद द चैप्टर, right? And you have also learned many things about our natural resources. Now, in the PDF I attach, I want you to write down this question answers, solve the exercise that is given in the textbook, plus learn and read the chapter thoroughly. I hope you have enjoyed. In the next chapter, we will meet with our chapter of civics. Thank you and have a nice day.